Class 9th students, today you are going to study about the Northern Plain in detail. Northern Plain is the second major physical division of the physical features of India. So you have studied about the Himalayas, and today you are going to study about the Northern Plain. Firstly, you have to know about the location of the Northern Plain. Where is the Northern Plain located? Northern Plain is located between the Himalayas and the Peninsula Plateau. So what is the location of Northern Plain? Between Himalayas and the Peninsula Plateau. You can see this in the map. So you have to remember that the Northern Plain lies between the Himalayas and the Peninsula Plateau. It is spread from Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, parts of northern Jharkhand, etc. So see this map. This dark portion is the with ranges is in the Himalayan region. Then this side is the Peninsula Plateau. This side is the Peninsula Plateau of India. So in between the Peninsula Plateau and the Himalayas lies the Northern Plain. Here it is written number 2. So the whole region right from here means the western part of India, including parts of Punjab, Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, and part of Jharkhand, northern part of Jharkhand. All these are under the Northern Plain. Northern Plain have been formed by the interplay of three major river systems. The first one is the Indus River system. Indus River system starts from here in this region. See the map? Here is Lake Mansarovar, and from here the Indus River starts and flows towards northwest between Ladakh and Jaskar range. Here is Ladakh range, here is Jaskar range. In between these two rivers, the river flows in northwest direction and enters Pakistan. This is River Indus. River Indus drains into the Arabian Sea. And so the larger part of River Indus lies in Pakistan. And Indus has 5 major tributaries: the Jhelum, the Ravi, the Satluj, the Beas. Jhelum, Ravi, Chenab, Satluj, Beas. So you have to see the location of all the rivers here. Firstly is the Jhelum, next is the Chenab river, next is Ravi, and next is river Satluj. And river Beas joins river Satluj. So firstly, if you see here minutely, the two rivers, Jhelum and Chenab, combines together in Pakistan. Then Ravi joins the same stream, and Beas first joins the Satluj river, and the Satluj water proceeds and joins the river Indus. And these all the joint water of Jhelum, Chenab, Ravi, etc. joins the Satluj first. And at last the Satluj joins river Indus. So this is about the Indus river system. So the whole of the northern plain has been formed by the deposition of alluvial soil brought by the three major river systems: the river Indus, river Ganga, and river Brahmaputra. So these are the three river systems. Once again, listen: Indus river system. So the first plain is the plain of Indus, which is in the northwestern part of India, and its major part lies in Pakistan. Then the second number plain is the plain of Ganga, or the Ganga river basin. Ganga river basin covers vast area of India. And then Brahmaputra river basin, which covers the area of Assam. And then it drains into Bay of Bengal, right? It passes through Bangladesh and drains into Bay of Bengal by moving southward. So the larger part of the northern plain of India is covered by the Ganga basin. So one by one, we will study about these three river basins or river plains. So you have already studied about the Indus river plain,
Indus River Plain is also known as the Punjab Plain. The other name for Indus River Basin is Punjab Plain. Next is Ganga Plain, and the third one is the Brahmaputra Basin or Brahmaputra Plain. So in first part, you have to study about the location and formation of the northern plain. About location, you will write that the northern plain is located between the northern plain is located between the Himalayan region and the Peninsula Plateau. And about formation, you will write that northern plain has been formed by the deposition of three major river system or the interplay of three major river system: the Indus River system, the Ganga River system, and the Brahmaputra River system. So this is about the location and formation of the northern plain. The northern plain is located between the Himalayas and the Peninsula Plateau. And the northern plain has been formed by the interplay of three major river systems: the Indus River system, the Ganga River system, and the Brahmaputra River system. When you use the word system, that means the river is not alone. The river includes all its tributaries. For example, when the Indus includes all the tributaries like Jhelum, Chenab, Ravi, Byas, and Satluj, then the whole jointly the whole river systems are known as a one system. That is the Indus River system. So whenever you say a river system, that means there is a major river and there are many tributaries which are also playing their role in the depositional work. You can see the direction of flow of the river. Indus River is flowing towards westward, southwest, in southwest direction. Ganga is flowing eastward towards the Bay of Bengal. Ganga is flowing towards east, towards the Bay of Bengal. And Brahmaputra River, which is flowing in the Tibet region in eastward direction, where it is known as River Sangpo. But when it enters Arunachal Pradesh, near a mountain peak of Himalayas, it is known as Namcha Barwa. There is a triangle shown here. It is the mountain peak of Namcha Barwa. From Namcha Barwa, River Sangpo takes a U-turn and then enters Arunachal Pradesh and then Assam. And it flows westward here and then southward. Through Bangladesh, it goes into the Bay of Bengal. So this is about the direction of flow of the river. Indus River system is going towards Arabian Sea, and Ganga and Brahmaputra river systems are going towards the Bay of Bengal. Then you come to the formation of northern plain, that these have been formed by the interplay of three major river systems: the Indus River system, the Ganga River system, and the Brahmaputra River system. That means these three river systems, along with their numerous tributaries, are depositing alluvial soil. And alluvial soil deposition has formed the northern plain, which is very fertile, which is very fit for agriculture, and a dense population lives here in this part. So this part, the northern plain region, is very densely populated and very intensively cultivated. Means cultivation is very easy, very good in this region. Why? Because of three reasons. Number one, there is deposition of alluvial soil, which is very suitable for agriculture. Number two,
देयर इज अबंडेंस ऑफ वाटर, है ना, यहाँ पे बहुत पानी है। क्यों पानी है ज्यादा? क्योंकि बड़े बड़े रिवर सिस्टम्स हैं और उसके अनगिनत ट्रिब्यूटरी रिवर्स भी हैं, इसलिए यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है। तो तीन कारण है जिसके वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत होता है। नंबर वन, देयर इज alluvial soil. नंबर टू, देयर इज देयर इज abundance of um, water through various rivers. And number three, climate is also moderate and suitable for agriculture. So you have to remember these three reasons why the northern plain is very fertile. I shall repeat once again. Number one, deposition of alluvial soil. Number two, abundance of water. Number three, suitable climatic condition. Now see about the area. The total area of the northern plain is 7 lakh square kilometer. The length of the plain is 2400 kilometer. The length of the plain is just parallel to the Shivalik range. There are three parallel ranges of Himalayas, the Himadri, the Himachal, and the Shivalik. After Shivalik, the northern plain starts, and therefore it is parallel to the Shivalik range. And so the length is 2400 kilometer. And this is also the length of the Himalayas. So it is parallel to the Himalayan range. And width, है इसकी चौड़ाई कितनी है? तो width है 240 kilometer to 320 kilometer. ठीक है? Length is 2400 kilometer, width is 240 to 320 kilometer. There are some geographical terms like Doab, Punjab, tributaries, distributaries. सबसे पहले देखेंगे दोआब किसको कहते हैं। तो लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज नोन एज दोआब। दो का मतलब हो गया टू और आब का मतलब हो गया पानी। तो दो रिवर के बीच के लैंड को हम कहते हैं दोआब। और जहां पांच पांच रिवर फ्लो कर रही है उस पूरे एरिया को क्या कहेंगे? पंजाब कहेंगे। तो द लैंड ऑफ 5 रिवर्स इज नोन एज पंजाब। जैसे इंडस रिवर सिस्टम में तुम लोगों ने देखा कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पांचों ट्रिब्यूटरी के जो एरिया हैं वो क्या कहलाएंगे? पंजाब कहलाएंगे। ठीक है, उस पूरे लैंड एरिया को कहेंगे पंजाब। यहाँ पंजाब स्टेट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे रिवर के एरिया से मतलब है कि ये पांचों रिवर जहां से जहां तक फ्लो कर रहे हैं वो पूरे एरिया को कहेंगे पंजाब। और उसी तरह अब एक एग्जांपल देखो, दोआब का एक एग्जांपल कि जैसे रिवर गंगा और रिवर यमुना बहुत दूर तक पैरेलल बहते हुए प्रयागराज में कन्फ्लुएंस कर जाती है, मिल जाती है। तो दोनों रिवर के बीच का जो लैंड है, गंगा और यमुना के बीच का लैंड है, उसको क्या बोलेंगे? दोआब। तो पंजाब में भी बहुत सारे दोआब मिलेंगे। जैसे झेलम और चेनाब के बीच का जो लैंड है उसको भी दोआब कहेंगे। चेनाब और रावी के बीच का जो लैंड है उसको भी दोआब कहेंगे। तो दो रिवर के बीच के लैंड को दोआब और पांचों रिवर के एरिया को क्या कहेंगे? पंजाब की। ठीक है। अब ट्रिब्यूटरी, तो ट्रिब्यूटरीज आर दोज रिवर्स विच ज्वाइन द मेन और मेजर रिवर। जैसे एक मेजर रिवर है तो मेजर रिवर में दूर दूर से आकर के छोटे रिवर्स आकर उसमें ज्वाइन करते जाते हैं, कंबाइन होते जाते हैं, तो उसको ट्रिब्यूटरीज कहेंगे। तो हम ट्रिब्यूटरीज को कैसे डिफाइन करेंगे कि ट्रिब्यूटरीज आर दोज रिवर्स विच आफ्टर फ्लोइंग लॉन्ग डिस्टेंस ज्वाइंस द मेजर रिवर। फॉर एग्जाम्पल, रिवर यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी टू रिवर गंगा। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। रिवर गंडक इज अ ट्रिब्यूटरी टू रिवर गंगा। गंडक रिवर भी गंगा में आके मिलती है तो वो उसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। अब जैसे सतलज जो है वो किसका ट्रिब्यूटरी हो गया? रिवर इंडस का ट्रिब्यूटरी हो गया। इंडस में आके सतलज रिवर मिल जाती है तो सतलज इज ट्रिब्यूटरी टू रिवर इंडस। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपको ब्रह्मपुत्र रिवर में भी देखोगे तो लोहित रिवर है जो उसका ट्रिब्यूटरी है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। अब जैसे यमुना रिवर है तो यमुना में भी कुछ रिवर आके मिलते हैं, जैसे चंबल, बेतवा, सिंध, ये सब रिवर यमुना में भी आके मिलते हैं। तो यमुना के लिए ये चंबल रिवर क्या हो गया? ट्रिब्यूटरी हो गया। तो ट्रिब्यूटरीज आर दोज रिवर्स और दोज स्ट्रीम्स ऑफ वाटर विच ज्वाइन द मेन स्ट्रीम ऑफ रिवर। ठीक है, तो यहाँ एक डायग्राम है, ये देख रहे हो तुम लोग, ये ट्रिब्यूटरी है,
मतलब अगर एक ही मेन स्ट्रीम इस तरह ईस्ट की तरफ ऐसे वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है, तो इसको ज्वाइन करने वाले बहुत सारे छोटे छोटे रिवर हैं। तो ये जो छोटे छोटे रिवर आके मेन स्ट्रीम में ज्वाइन कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिब्यूटरी। एंड नाउ द नेक्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब कि जो मेन स्ट्रीम है रिवर का, वो रिवर के लोअर कोर्स में जाकर, लोअर कोर्स मतलब सी के पास जब रिवर पहुंच जाती है, तो सी के पहले उसको एकदम फ्लैट लैंड मिलता है। तो फ्लैट लैंड में जो मेन स्ट्रीम है वो कई सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। व्हेन द लैंड इज ऑलमोस्ट फ्लैट, when the land is almost flat, the flow of river is very slow, and therefore, due to deposition of silt and soil, the main stream of the river divides itself into many distributaries. ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी का एग्जाम्पल हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूटरी मेन स्ट्रीम का डिवीजन है, ठीक है ना। जैसे गंगा फ्लो करते करते जब बांग्लादेश में चली जाती है, तो बांग्लादेश में गंगा बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरी में डिवाइड हो जाती है, और वेस्ट बंगाल में भी गंगा का एक डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाता है जिसको रिवर हुगली कहते हैं। तो रिवर हुगली वेस्ट बंगाल में साउथवर्ड फ्लो करने लगती है मेन स्ट्रीम से अलग होकर। तो रिवर हुगली इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटरी इन इंडिया, ठीक है ना, एंड विच इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, ठीक है। तो पंजाब, दोआब, डिस्ट्रीब्यूटरी, ये सब हो गया, है ना। और ऐसे ही जब यहाँ जब रिवर का फ्लो कम हो जाता है जिस जगह पे, तो वहां रिवर के बीच में बहुत डिपोजिशन हो जाता है, रिवर के बीच में भी, उसके पाथ में भी डिपोजिशन होता है, तो आइलैंड्स की तरह छोटे छोटे लैंड बन जाते हैं, ठीक है। तो उसका एक एग्जाम्पल है माजुली आइलैंड। माजुली आइलैंड जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के बेड में, मतलब बीच में बना हुआ है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जब असम में फ्लो करती है तो वो बहुत ब्रॉड हो जाती है, तो ब्रॉड रिवर है और एकदम फ्लैट भी है। तो फ्लैट रिवर के बीच बीच में सॉइल का डिपोजिशन होने लगता है, और सॉइल का डिपोजिशन होते होते आइलैंड बन जाते हैं। तो ऐसे आइलैंड को हम क्या कहते हैं? रिवराइन आइलैंड कहते हैं। जो रिवर के बीच में आइलैंड बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिवराइन आइलैंड। तो ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है जिसका नाम है रिवराइन आइलैंड। So which is the largest riverine island in the world? Majuli is the Majuli, Majuli. Majuli is the largest riverine island of the world. ये तो तुम लोग देख चुके हो कि पंजाब प्लेन में कौन कौन से रिवर हैं। तो पंजाब प्लेन में मेन है इंडस रिवर, और उसके सारे ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। और गंगा रिवर का जो प्लेन है वो हरियाणा में एक रिवर है घग्गर, घग्गर से स्टार्ट होता है, तो तीस्ता रिवर तक, तीस्ता है सिक्किम में, तीस्ता रिवर तक इसका एरिया है। और स्टेट कौन कौन से कवर होता है? हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये सारे कवर होते हैं, ठीक है। अब एक मेजर पार्ट है जो हम लोग को पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। देखो, नॉर्दर्न प्लेन को दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो हो गया रिवर के अकॉर्डिंगली, अगर रिवर के अकॉर्डिंगली, रिवर बेसिन के अकॉर्डिंगली अगर डिवाइड करना है तो वो हो जाता है रिवर इंडस बेसिन, गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्र बेसिन। तीन क्लासिफिकेशन हो गया। और मेजर क्लासिफिकेशन ये दूसरा क्लासिफिकेशन है, ये इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन अकॉर्डिंग टू रिलीफ। रिलीफ मतलब हाइट के हिसाब से नॉर्दर्न प्लेन को हम कैसे बांटेंगे। तो जैसे हिमालय से उतरते हुए प्लेन लैंड का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, हिमालय से उतरते हुए साउथ की तरफ हम बढ़ते बढ़ते आपको पेनिनसुलर इंडिया के पहले तक ये है नॉर्दर्न प्लेन है। तो नेचुरल है कि जब हिमालय से नीचे की तरफ आएंगे तो जो प्लेन का पहला हिस्सा होगा वो ज्यादा ऊंचा होगा, उससे नीचे उतरेंगे तो उसके हाइट थोड़ी कम होगी, उससे नीचे उतरेंगे तो हाइट और कम होगी, और लास्ट में एकदम रिवर के पास चले आए, यहाँ जैसे रिवर का ये रास्ता है, रिवर के पास चले आए तो ये सबसे लोअर प्लेन होगा। तो हाइट के हिसाब से
नॉर्दर्न प्लेन को भाबर, तराई, भांगर और खादर 4 पार्ट में बांटते हैं। नंबर 1 इज भाबर। तो भाबर क्या है? जब हिमालय तुम लोग पढ़े तो हिमालय के 3 पैरेलल रेंज देखे। मान लो अगर इधर हम नॉर्थ मानते हैं हिमालय को, और इधर का डायरेक्शन साउथ मान लो इस डायग्राम में, तो ये तीनों माउंटेन रेंज हैं, हिमाद्री, हिमाचल, शिवाल। और इसके नीचे उतरने पे जब फुट हिल पे हम आ जाते हैं, नीचे की तरफ आ जाता है, अब यहाँ से क्या शुरू होता है? प्लेन लैंड शुरू हो जाता है। तो प्लेन लैंड में सबसे पहला हिस्सा जो है उसको हम क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। तो भाबर इज द डिपोजिशन ऑफ पेबल्स ब्रॉट बाय द रिवर्स। तो ये पेबल का एरिया होता है। पेबल मतलब राउंडेड रॉक्स होते हैं यहाँ पर, जिसका डिपोजिशन होता है। तो भाबर बिल्कुल रॉकी एरिया है। पेबल्स जो है, राउंडेड रॉक्स जो है, वो बिल्कुल यहाँ पे स्टडेड होते हैं, वेल अरेंज्ड होते हैं। वो वाटर के फ्लो के हिसाब से ये हो जाता है। तो यहाँ पे जो सारे रिवर है ना, हिमालय से आने वाले रिवर, वो डाउन स्ट्रीम हो जाते हैं। रिवर के स्ट्रीम ना इस रॉक्स के अंदर हो जाते हैं, तो ये ऊपर से बिल्कुल ड्राई दिखता है। तो ये हो गया भाबर। अब भाबर की आप लंबाई और चौड़ाई के बारे में लिखेंगे कि लंबाई तो उतना ही हो गया जितना शिवालिक रेंज के पैरेलल ये फैला हुआ है भाबर। तो उतना हो गया उसका लंबाई। और चौड़ाई में ये लिखेंगे कि इट इज about 8 to 16 kilometer in width. The width of Bhabar is about 8 to 16 kilometer. ठीक है? तो भाबर के बारे में 2-3 बातें लिखेंगे। पहली बात ये कि भाबर is the first and the highest relief feature of the northern plain, in which there is deposition of rounded pebbles, and the stream of the rivers go downstream in this region. So the upper part is dry, है ना, ऊपर से बिल्कुल सूखा है, नीचे से सारे स्ट्रीम फ्लो करते हैं। और ये स्ट्रीम फ्लो करते करते फिर इधर आके तराई रीजन जब आता है तो ये स्ट्रीम रीअपियर हो जाते हैं। Therefore, the Tarai region is very marshy and swampy. Marshy and swampy मतलब यहाँ बहुत पानी पानी है, ये एरिया बहुत वेट है, मार्शी और स्वैम्पी है। तो तराई इज फाइनर इन द टेक्सचर, है ना, यहाँ पे सॉइल का टेक्सचर थोड़ा फाइन हो जाता है। जैसे भाबर में क्या है? रॉकी है, और यहाँ पे वही रॉक्स और बारीक हो जाते हैं, फाइन हो जाते हैं। तो तराई इज अ deposition of alluvial soil, finer alluvial soil, and there is lot of river water in this area which reappears from the Bhavar after crossing the Bhavar. तो तराई is full of forest, और ये बहुत फर्टाइल लैंड भी है, इसलिए यहाँ पे फॉरेस्ट को क्लियर करके एग्रीकल्चर भी होता है। तो ये दूसरा पार्ट हो गया तराई। ठीक है? अब तीसरे में क्या लिखेंगे? भांगर, Bhangar, भांगर। भांगर मतलब ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। तो हाइट में देख रहे हो ना कि सबसे ऊंचाई वाला एरिया है भाबर, उससे थोड़ा नीचे उतरे तो तराई हो गया, और तीसरा हो गया भांगर। तो भांगर इज द डिपोजिशन ऑफ ओल्ड एल्यूवियल सॉइल विच इज कंपेरेटिवली लेस फर्टाइल व्हेन यू कंपेयर दिस विद द खादर सॉइल। खादर सॉइल से अगर हम तुलना करें तो इसकी फर्टिलिटी थोड़ी कम होती है, और ये भांगर सॉइल इसका नाम है। और इसमें कैलकेरियस डिपॉजिट होता है ना, कैलकेरियस डिपॉजिट्स लोकली नोन एज कंकर। इसमें कैलकेरियस डिपॉजिट होता है जिसको लोकली कंकर कहते हैं। ये ड्राइनेस की वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है? और फिर ये भांगर एरिया भी एग्रीकल्चर में यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हमको इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना होता है, फर्टिलाइजर देना होता है, तब जाकर के यहाँ पर भी एग्रीकल्चर होता है। और नेक्स्ट है, लास्ट है, जो क्या है? खादर। तो खादर के बारे में याद रखना कि जहां भी रिवर फ्लो कर रही है तो उसके रिवर के अगल बगल दोनों साइड वाले जो लो लाइंग एरिया है, वहां पे कौन सा सॉइल मिलेगा? खादर मिलेगा। तो गंगा रिवर है मान लो ये, तो गंगा के लेफ्ट बैंक में भी खादर है, और इधर राइट बैंक में भी खादर सॉइल है। खादर मतलब न्यू एलिवियल सॉइल। ये न्यू एलिवियल सॉइल क्यों होता है? क्योंकि रिवर में जब रेनी सीजन में फ्लड वाटर आता है तो यहाँ फ्लड का वाटर फैल जाता है, और फ्लड वाटर जब बैक होता है, रिसीड होता है, तो यहाँ पे न्यू फर्टाइल सॉइल छोड़ जाता है। तो हर एक साल न्यू फर्टाइल सॉइल का यहाँ पे डिपोजिशन होता है। मतलब यहाँ है रिन्यूअल ऑफ एल्यूवियल सॉइल। कौन से रीजन में होता है? खादर रीजन में होता है। तो इसलिए खादर सबसे ज्यादा फर्टाइल रीजन माना जाता है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है। यहाँ फर्टिलाइजर और इरिगेशन की बहुत जरूरत नहीं है, उसके बाद भी, उसके बिना भी
एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए ये एरिया बहुत ही सुटेबल है एग्रीकल्चर के लिए। तो खादर इज द प्लेन लैंड विच इज हैविंग न्यू एलिवियल सॉइल। द सॉइल इज रिन्यूड एवरी ईयर आफ्टर द फ्लड, है ना। फ्लड वाटर दोनों साइड भर जाता है, और फ्लड वाटर वापस जब रिवर में बैक होता है तो यहाँ पे नया एलिवियल सॉइल छोड़ जाता है। तो न्यू एलिवियल सॉइल इज मोर फर्टाइल देन द ओल्ड एलिवियल सॉइल। ओल्ड एलिवियल सॉइल किसमें है? बांगर में। और न्यू एलिवियल सॉइल किसमें है? खादर में। देखो, इसको भांगर या बांगर भी बोलते हैं। तो भांगर में ओल्ड एलिवियल सॉइल और खादर में न्यू एलिवियल सॉइल। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन अकॉर्डिंग टू रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ हाइट ऑन द अर्थ सरफेस। Difference of height on the earth's surface is known as relief. What is relief? Difference of height on the earth's surface is known as relief. So according to relief, the northern plain is divided into Bhabar, Tarai, Bangar and Khadar. ठीक है। अब इस तरफ भी देख रहे हो कि यहाँ पे दूसरे राइट बैंक में, बैंक मतलब किनारा, तो रिवर के राइट बैंक में भी रिवर के सबसे पास क्या मिलेगा? खादर। और दूर जाएंगे तो कौन सा सॉइल मिलेगा? भांगर सॉइल मिलेगा। और उसके बाद इधर बढ़ेंगे तो इंडिया में ये क्या शुरू हो जाएगा? इधर आपका पेनिनसुलर प्लेटो शुरू हो जाएगा। ये जो डायग्राम है, इसमें ये जो साइड है ना, लेफ्ट साइड ये नॉर्थ दिखा रहा है, और इधर क्या दिखाएगा? साउथ। तो इस हिसाब से ये डायग्राम बना। अब देखो, हम लोग जो ये लेसन पढ़े, तो उसमें हम लोग को क्वेश्चन क्या क्या बनता है, ये क्वेश्चन नोट कर लो। क्लासिफाई द नॉर्दर्न प्लेन अकॉर्डिंग टू रिलीफ। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर हो गया कि तुमको उसमें चारों के बारे में 2-2 लाइन डिटेल लिखना है। जैसे भाबर, तराई, बांगर और खादर, चारों के बारे में 2-2, 3-3 लाइन इसका डिटेल लिखना है। तो ये आपको लॉन्ग आंसर में 5 मार्क्स में पूछा जाता है। क्लासिफाई द नॉर्दर्न प्लेन अकॉर्डिंग टू रिलीफ। नेक्स्ट है क्लासिफाई द नॉर्दर्न प्लेन अकॉर्डिंग टू रिवर बेसिन्स। अगर रिवर बेसिन्स के हिसाब से क्लासिफाई करना है तो क्या लिखोगे? द इंडस रिवर बेसिन, द गंगा रिवर बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। और इसके डिटेल में क्या लिखेंगे? इंडस रिवर सिस्टम के सारे ट्रिब्यूटरी का नाम लिख देंगे, गंगा रिवर सिस्टम का एरिया भी लिखेंगे और उसके ट्रिब्यूटरी का भी नाम लिख देंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का भी ट्रिब्यूटरी का नाम लिख देंगे। जैसे आपको इस लेसन में तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ड्रेनेज वाले चैप्टर में ब्रह्मपुत्र रिवर के ट्रिब्यूटरी का नाम दिया हुआ है, लोहित रिवर, लोहित उसका ट्रिब्यूटरी है, वो लिख सकते हैं। एरिया लिख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र रिवर मेनली असम रीजन में है। ठीक है। और गंगा बेसिन किस में है? तो आपका हरियाणा से लेकर के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पार्ट ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ झारखंड और पूरा वेस्ट बंगाल, इतना इसका प्लेन होगा। तो इसके डिटेल में, रिवर बेसिन के डिटेल में, रिवर मेन रिवर सिस्टम का नाम लिखना है, उसके ट्रिब्यूटरी का नाम और एरिया का नाम लिखना है। फिर अब डिफाइन द फॉलोइंग। रिवराइन आइलैंड। तो रिवराइन आइलैंड क्या होता है? द आइलैंड्स फॉर्म बिटवीन द रिवर or inside the river is known as riverine island. For example, Majuli is a very big riverine island in the Brahmaputra river in Assam, है ना। जहाँ बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड बन जाते हैं ना, तो उसको ब्रेडेड चैनल भी कहते हैं। वैसे रिवर को क्या कहते हैं? ब्रेडेड चैनल, BRAIDED। ये सब आपको नेक्स्ट लेसन में लिखा हुआ है, ड्रेनेज वाले लेसन में। दोआब को डिफाइन करने आता है कि द लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज नोन एज दोआब, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स इज नोन एज पंजाब, ट्रिब्यूटरी आर द रिवर्स which join the main stream of the river, distributary are those rivers which bifurcate or divide itself from the main stream in the lower course of the river. Lower course किसको कहते हैं? जब रिवर सी के पास चला जाता है तो उस एरिया को क्या कहते हैं? उस लैंड को कहते हैं लोअर कोर्स। तो रिवर के 3 कोर्स होते हैं, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स। अपर कोर्स होता है माउंटेनस एरिया रिवर का, माउंटेन से रिवर स्टार्ट हुआ तो वो उसका अपर कोर्स हो गया। प्लेन लैंड में उसका लोअर मिडिल कोर्स हो गया, और सी के पास वाला जो प्लेन लैंड है वो उसका लोअर कोर्स हो गया। ठीक है। व्हाट इज द एरिया? एरिया नॉर्दर्न प्लेन का 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। लेंथ और विड्थ कितना है ना? तो लेंथ तो 2400 किलोमीटर होगा,
पूरा नदर्न प्लेन का। और विड्थ आपका कितना है, बताइए। विड्थ भी करीब है 242 320 किलोमीटर ब्रॉड। तो ये सारा आंसर होगा। ठीक है, so दिस इज ऑल अबाउट द नदर्न प्लेन। और नदर्न प्लेन में जो जो मेन मेन टॉपिक जो पढ़ना है वो यही हो गया कि नदर्न प्लेन का लोकेशन क्या है, मतलब कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है नदर्न प्लेन। फिर नदर्न प्लेन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर क्यों ज्यादा होता है, उसके तीन फैक्टर हैं। फर्टाइल सॉइल है, अबंडेंस ऑफ वाटर है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे रिवर फ्लो करते हैं, और फिर क्लाइमेट जो है वो भी सुटेबल है एग्रीकल्चर के लिए। तो ये हो गया। तो लोकेशन, फॉर्मेशन, ये सब के बारे में शुरू में हम लोग पढ़े, और उसके बाद बहुत सारे ये टर्म्स पढ़े। तो आप पंजाब, ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी, रिवराइन, आइलैंड, ये सब। और फिर तीनों रिवर सिस्टम का डिटेल पढ़े। और अंत में क्या पढ़े कि ये वाला जो है अकॉर्डिंग टू रिलीफ, क्लासिफाई द नॉर्दर्न प्लेन अकॉर्डिंग टू रिलीफ, ये लास्ट में इसका डिटेल हम लोग। तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन। ओके, so you revise this lesson. So this class is going to an end. So you'll learn and revise. Read the lesson again and write question answers.